Hello, everyone. We welcome our guests who are with us to inspire and surprise us today. On behalf of Wiki Punjab Rural Tourism Council, I'm Priyadeep Kaur, Vice President of Wiki Punjab Rural Tourism. Welcome all of you to the series Rubaru, Taste of Punjab, which is aimed to appreciate the women culinary experts of Punjab. We welcome our today's special guest, Chef Sumanjali, founder of YouTube channel Sumanjali Meshida Dhaba. As you know, we are hosting Rubaru, the Taste of Punjab, Women Influencer Series 2 on the occasion of Vaisakhi celebrations from 10th April to 14th April. The second series is dedicated to women culinary experts who are promoting local authentic cuisine, empowering women and promoting culinary tourism in rural areas of Punjab. I would like to introduce today's speaker, Chef Sumanjali, to share her journey of running YouTube channel Sumanjali Meshida Dhaba. Sumanjali Kaushik is YouTuber chef. Her birthplace is Amritsar. I see where you get that special taste in your dishes. She says that everyone in Amritsar is very, this is the indigenous and pure food available there. She got her passion for cooking from her father. Her father was owner of Meshi Pelwan, the Dhaba, for 25 years. By profession, he was a wrestler and used to teach wrestling in the daytime and used to run his dhaba in the evening because they used to teach wrestling in the arena during the day. Due to high diabetic condition, he lost both his feet and they've had to shut down the dhaba. But now she and her father, together run the YouTube channel Sumanjali Meshida Dhaba. Sumanjali is, of course, honored guest today, and Meshi is Sumanjali ma'am's father's name. On YouTube channel, she shares authentic Punjabi recipe which were taught to her by her father, and she gives this credit of her success entirely to her father. In her words, I am the only daughter and son of my mom, Daddy Ji, and I want to take my daddy's name far ahead. I hope that with all of our love, blessings, guest ma'am will get enough opportunity to bring Meshida Dhaba to greater audience and spread the authentic flavors. Festival and food have special connection, which make all festivals enjoyable, and we wish that these festivals bring peace, well-being, and prosperity in everybody's lives. Punjabis are known to indulge in pompous celebrations, be it marriages or festivals. In fact, I think we look for certain excuses just to eat good food. Vaisakhi is celebrated with the same level of zest and enthusiasm. On this very day, people dress up in hues of yellow and oranges and also cook yellow colored foods. Main dishes are curry, pile chawal, kesar pinni, mango lassi, and kala prasad, of course, and endless mouth-watering delicacies that you get to enjoy. Now let's meet our today's guest, and we will hear more in her words. Over to you, ma'am. Thank you so much, Priya, for wonderful introduction of. Thank you, ma'am. Sumanjali ma'am, आपने as a homemaker, you have started your parents team. So हम आपके जानना चाहेंगे कि आपने YouTube शेफ में ये सफर कैसे शुरू किया, आपके पीछे मतलब इस प्रेरणा का कौन मेन पर्सन रहा है इस YouTube चैनल के चलाने के लिए? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में ही बताना चाहूंगी। मेरा नाम सुमांजलि कौशिक है और मेरी जन्मभूमि अमृतसर है, और शादी के बाद मैं जो है अपनी फैमिली के साथ दिल्ली गाजियाबाद में रहती हूँ, और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा जो है कुकिंग चैनल है, जो कि जिसका नाम हमने रखा है सुमांजलि मेशीदा ढाबा। सुमांजलि मेरा नाम है और मेशी मेरे डैडी जी का।
तो आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी पंजाब रूरल टूरिज्म की पूरी टीम को, राशि मैम को, शिवानी मैम और प्रिया मैम को। थैंक यू सो मच। और आज मैं जो है बहुत खुश हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे आप सब ने ये मौका दिया कि मैं आज आकर यहाँ पे टेस्ट ऑफ पंजाब के साथ रूबरू हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रणाम करना चाहूंगी अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके सपनों को अपनी छोटी छोटी कोशिशों से पूरा कर सकूं। आज उन्हीं की एक कोशिश को मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ और बहुत ही खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो प्रेरणा है वो है मेरे माता पिता। मैंने अपने मम्मी डैडी जी से ही सब कुछ सीखा है। और आज का जो सफर है मेरा अभी तक का, उन सबके पीछे मेरे डैडी जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही आज मैं जो है एक यूट्यूबर, एक कुकिंग स्किल तक आ सकी हूँ। उनका खुद का अपना एक ढाबा था जिसका नाम था मेशी पहलवान का ढाबा। मेशी मेरे डैडी जी का नाम है और पहलवान इसलिए क्योंकि वो दिन में अपना अखाड़ा चलाते थे, कुश्ती करते थे और शाम के समय से उनका ढाबा स्टार्ट हो जाता था। बचपन से ही मैंने उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है और जो उनका तरीका था कुकिंग करने का वो मुझे बहुत पसंद था। और उनको मैंने देखा है कि वो अपने काम में बहुत खुश रहते थे, बहुत ज्यादा। अभी भी जब मैं उनको देखती हूँ तो वो जब कुकिंग कर रहे होते तो उनके चेहरे की खुशी ही एक अलग होती है। तो हमेशा से मैंने ये सोचा है कि मुझे अपने डैडी जी जैसा बनना है। मेरी जो प्रेरणा है वो मेरे डैडी जी ही है। और अगर हम सफलता की बात करें तो मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी सफलता के साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरे अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारी सफलता है वो हमेशा जो हम खाना बनाते हैं, और हर खाना बनाने वाला इंसान जो है उसकी सफलता के पीछे हर वो इंसान होता है जो उस खाने को खाकर उसकी तारीफ करता है। और जब तारीफ होती है तो हम अपने खाने को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वही हमारी सफलता होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपके इस प्रेरणा के स्रोत आपके माता-पिता हैं और आप आज की यंग जनरेशन होने के बाद भी अपने पेरेंट्स को आप उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस देती हैं। सो जब हम शेफ की बात करते हैं, तो हर शेफ के लिए एक ना उसका शेफ कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जब वो उसे जी पहनता है तो उसे बहुत प्राउड फील करते हैं। सो आपने जी तो कोई होटल मैनेजमेंट का या किसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, तो हम जानना जी चाहेंगे कि आपको आपका पहला शेफ कोट कैसे मिला जी, और तो कब मैं मिला? आपको बताना चाहूंगी। हमारा जैसे मैंने आपको बताया मुझे कुकिंग का शौक है, तो उसी शौक को चलते हुए हमेशा मेरे को कुछ सीखने की इच्छा रहती थी कि मुझे कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। तो मेरे पास कोई ज्यादा सोर्सेज नहीं थे अपने घर से निकलने के या कुछ है, तो मैंने उसमें फेसबुक को चुना। फेसबुक पर जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे जो है फूड ग्रुप है जहाँ पर आए दिन नए नए कॉन्टेस्ट आते हैं। तो जब मैंने उनको ग्रुप को ज्वाइन किया तो वहां पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जो कि सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया एसोसिएशन की तरफ से था। वहां पर हमारी हेल्दी रेसिपी मांगी गई थी जो कि हमें अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी हेल्दी वे में प्रेजेंट करनी थी। तो तब मैंने उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया और वहां पर मैं अपनी पंजाब की रेसिपी को लेके आई। मैं वहां पे जो कबाब बनते हैं वो लेकर आई और उससे मैंने हेल्दी वे में बनाने के लिए सोयाबीन की बड़ियों का इस्तेमाल किया, न्यूट्री का इस्तेमाल किया। मैंने न्यूट्री सोया कबाब की रेसिपी वहां तक पहुंचाई और मेरी उस रेसिपी को बहुत ज्यादा सराहा गया, बहुत मुझे तारीफ मिली। और जो जजेस है उन्होंने इसे जज किया और उसे 99% से विनिंग लिस्ट में लाया गया। और तब मुझे मेरा अपना जो पहला शेफ कोट है मेरे घर पर भिजवाया गया, मेरे सुमांजलि निशिदा ढाबा के नाम से। और जब मैंने उस शेफ कोट को पाया तो मैंने उसे खोला, जब नाम देखा मैंने एज इट इज उस कोट को पैक कर दिया। और फिर मैंने, क्योंकि वो मेरे डैडी जी के नाम का था, मैंने उन्हीं की मेहनत से कमाया था उसे। और जब मैं अमृतसर गई तो मैंने अपने डैडी जी को वो कोट दिया, उन्हें पहनाया सबसे पहले और उनकी बहुत सारी फोटो क्लिक की। तो वो जो टाइम था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया क्योंकि उससे मैंने जो डैडी जी से सीखा था उस सीख को मैं वहां तक लेके गई और उसके थ्रू मेरे पास ये शेफ कोट पहुंचा। बहुत ही आपकी ये कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी है कि आपका एक जो पैशन है और जो अपने पेरेंट्स के लिए प्यार है,
वो आई जी, थिंक आज की जनरेशन और हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो जैसे जी, आप चैनल है, चैनल में तो सबसे पहले हमें किसी न किसी चीज़ का वीडियो बना के ही हम डाल सकते हैं। तो ये जो आपका जी, फूड वीडियो बनाना फूड के खाने के ऊपर जो आपने वीडियोज़ बनाने शुरू किए, तो आपकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी। शुरुआत कुकिंग का तो मुझे शौक था ही, लेकिन वो शौक कब जुनून में बदल गया मुझे खुद पता नहीं चला, क्योंकि मेरे को हर समय ये रहता कि मुझे इससे बेटर करना है, इससे अच्छा करना है। और जो भी मैंने किया उसे सीख-सीख कर ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने घर के अंदर ही हूँ, मेरे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर बच्चे छोटे हैं, फैमिली है और ये सब घर से निकल पाना थोड़ा-सा टफ था। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी कुकिंग क्लासेस जो है स्टार्ट करनी चाहिए। तो लेकिन सिर्फ़ सोच तक ही सीमित था, उसके लिए भी मैं समय नहीं निकाल पाती थी कि मुझे अपनी कुकिंग क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो तब मैंने 2017 में मैंने सोचा कि मुझे जो है कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले जहाँ पर मैं जो अपनी किचन में बना रही हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। तब मैंने यूट्यूब को चुना और मेरी जो पहली वीडियो थी, पहली रेसिपी थी, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी। सो आपने अपना ये यूट्यूब चैनल इस तरह से आपने शुरू किया। तो आपको शुरू जी। में ज़रूर कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर आपके जैसे कुछ महिलाएँ अगर अपना खुद यूट्यूब चैनल चलाना चाहें, सो व्हाट दे शुड बी टेकन केयर और आपको जो चैलेंजेस आए वो उनको नहीं फेस करने पड़े? जी, ये आपका सवाल जो है मुझे बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि ये आमतौर पर हम जो हाउसवाइफ होते हैं, घर पे हम रहते हैं, उन्हें तो इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है और ये चुनौतियाँ हमें तो एक पहाड़ के बराबर लगती है कि क्या हो गया, हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि बस खाना बनाया, फैमिली को खिलाया, दैट्स इट, क्लियर, अब हो गया। लेकिन जब हमें तारीफ़ मिलनी शुरू होती है कि नहीं, क्योंकि जब मैं बनाती थी अपनी पंजाबी रेसिपी, जैसे मैंने शादी के बाद मेरी शादी दिल्ली में हुई तो हम बहुत साधारण खाना खाते थे। तो मैं अपनी पंजाबी रेसिपी लेकर आई थी जब मैंने अपनी पहली रेसिपी बनाई थी लोंजी, और साथ में बनाया था गाजर का हलवा। और उसमें जो लोंजी होती है, आलू की सब्ज़ी होती है और उसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल होता है। तो जब मेरी फैमिली ने वो खाया और जो गेस्ट आए हुए थे हमारे रिलेटिव्स, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं विश्वास कर सकते कि ये सुमांजलि ने बनाया है, या तो आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर या ढाबा वगैरह से ऑर्डर किया है, ये इन्होंने बनाया ही नहीं है। तो वो जो तारीफ़ थी ना, मुझे उस दिन समझ आ गया कि मैं अभी तक जो सोच रही हूँ कि मुझे कुकिंग करनी है, अब मुझे एक रास्ता जो है मिल गया है और मैं अपनी फैमिली से बात करके अब आगे बढ़ सकती हूँ। तो धीरे-धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और फिर उसके बाद एक बार फिर मेरे पास दोबारा ये टाइम आया कि मैंने अपना पंजाबी जो खाना लेकर आई, मैंने खट्टा-मीठा कद्दू बनाया। तब मतलब हस्बैंड को इतना पसंद आया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि सुमन, तुम इतना अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथ में कुछ तो है, तो तुम अपने हुनर को क्यों छुपाए बैठे हो? तुम कुछ ऐसा करो कि तुम लोगों को सिखा सको। मैंने इनको ये बोला, मुझे अपना ढाबा खोलना है। मुझे अब जो ढाबा डैडी जी का सपना है, जो अभी वो नहीं अपना पूरा कर पा रहे हैं अपनी इस सिचुएशन के चलते, मुझे वो करना है। तो इन्होंने बोला ढाबा होगा तो लोग आएँगे, खा के चले जाएँगे। लेकिन अगर तुम जो डैडी जी से सीख रही हो वो तुम्हें दूसरों तक पहुँचाना है, तो ये एक यूट्यूब अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तुम अपनी रेसिपीज़ यहाँ पर शेयर करो। जो उन्होंने मुझे एडवाइस दी वो बहुत ईज़ी थी और मैंने उसे अपना लिया कि ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल पर अपनी जो है रेसिपी है वो पोस्ट करूँगी। लेकिन करना क्या है? कैसे पोस्ट करूँ? क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन था, सिर्फ़ मुझे उससे बात करनी थी, बस कॉल करना आता था, उसके अलावा मुझे फ़ोन यूज़ करना नहीं आता था कि उसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है, कोई क्वालिटी नहीं थी। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, वो इतनी ब्लर आती थी और जब मैं बोलना स्टार्ट करती थी, तो बाहर से कभी बाइक जा रही है, ट्रैफ़िक की आवाज़ है, डॉग की आवाज़ आ रही है, डोरबेल बज रही है या पंखे की घर-घर की आवाज़ आ रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में चली गई। और मेरे को रात-रात भर नींद नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है? मैंने सोच तो लिया कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैं सबकी वीडियोज़ देखती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी उनके चैनल की और इतना अच्छा बोलते थे वो। तो बहुत मतलब इतनी सारी टेंशन्स मेरे को रहती थी कि मुझे कैसे करना है। फिर मैंने कई यूट्यूब पर ही वीडियो जो आती हैं उन्हीं को देखना शुरू किया और सबसे अच्छी बात है जो मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे डैडी जी यही कहते हैं कि बेटा कोशिश करो,
तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो भी हम काम पहली बार करने जाते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, धीरे धीरे सीखने पर ही हमें वो आता है। तो मैं हमेशा सबको यही कहूंगी कि मैंने भी कोशिशें की और अभी भी मेरी कोशिश जारी है और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ रही हूँ। तो दिक्कतें, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। यही बहुत सब दिक्कतें मुझे आई। आपकी सबसे अच्छी बात हमें यही लगी है कि हमें चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, पर हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें बस मंजिल की ओर बिल्कुल। चढ़ते जाना चाहिए। कहीं न कहीं जी। हम उस मंजिल तक पहुँच ही जाएँगे। सो दैट्स अ जी। वेरी गुड थिंग यू हैव टोल्ड अबाउट इट। पर जो भी कहिए, हम चाहे इमोशनली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी ट्राइंग, बट जहाँ पे जी। टेक्निकल थिंग्स की बात आती है, सो जी। उसमें आपने क्या, आप जो चीज़ें हैं कि जो आपको लगता है कि वो हमें एज़ ए यूट्यूब चैनल चलाने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए हमें आनी ही चाहिए। तो उस विषय में जी। आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊँगी कि हर किसी का अपना-अपना एक शौक होता है। मेरा कुकिंग का शौक था, तो मुझे उसी पर ही अपनी वीडियो जो है पोस्ट करनी थी। और सबसे पहले तो हमें, जब हम अपना यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा ऐप होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम कर सकें। और बहुत सारे ऐप ऐसे आते हैं जिस पे वाटरमार्क लगा होता है, और अगर हम उस वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं तो हमें उसके जो है पे करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मेरा एक टारगेट था कि जब मेरे अ 20 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएँगे, 20,000 से ऊपर हो जाएँगे, मैं तभी इसमें पैसे लगाऊँगी। तब तक मुझे जो मिल रहा है, मुझे उसी तरीके से करना है। और मेरी अभी तक यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सारी मैंने अपने हाथ में, जो मेरा मोबाइल रहता है, मैंने उसी को पकड़ के एक हाथ से वीडियो बनाई है और एक हाथ से मैंने कुकिंग की है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खरीदा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चाहिए, मैं तभी कुकिंग कर पाऊँगी। मेरा एक ही सोचती कि मुझे कुकिंग करनी है, मुझे अपनी रेसिपीज़ को, अपने स्वाद को जो मैं बना रही हूँ, वो मुझे सब तक पहुँचाना है, मुझे मेहनत करनी है उसी के ऊपर। वो अगर सबको पसंद आती है, और सबसे अच्छी बात हमें जो होती है, हमारा बोलने का तरीका। अगर वो हमारा बेस्ट है, सब तक हमें अपनी बात को पहुँचा पा रहे हैं, उन्हें समझा पा रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है। बाकी जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो उसपे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखकर समझ पाते हैं कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने भी उन्हीं को ही चुना। मुझे सलाह कहते हैं ना कि देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको हमें करना कैसे है, इसके लिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। जो टाइम मुझे नहीं मिल पाता था, वो टाइम मैंने खुद से निकाला। अपने आप को टाइम दिया और वीडियो से सीख-सीख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दैट्स वेरी गुड। इवन जैसे हम लोग भी शादी के बाद जब घर में गए थे तो कभी कुछ कुकिंग नहीं करी थी। तो ओनली संजीव कपूर यूज्ड टू बी कम ऑन द चैनल टीवी चैनल। जी। तो हमने उन्हीं का देख हुँ। के चुका। अब सेकंड मेरे फेवरेट है रणबीर बरार। हरपल यस, वो तो डेफिनेटली। बहुत बड़े तो शेफ़ हैं। जी, बट लेकिन बिल्कुल। उनके, जब वो वीडियो उनके देखते हैं ना तो खाना बनाने के साथ वो हम इक्वली एन्जॉय भी करते हैं। सो एन्जॉय आई कैन करते हैं। अंडरस्टैंड कि अपना अब आपको सुमन जी का भी आपको फेवरेट बनाना पड़ेगा अभी। हाँ रणवीर जी। बरार के बाद अब सुमन जी का नाम आना चाहिए। हाँ, बस थैंक यू सो सुमंजली। मच मैम। और नॉट ओनली मी, आई थिंक हमारी विकी में जितने भी लोग हैं जो सुमंजली मैम का नाम, शेफ सुमंजली का नाम सुनेंगे सिर्फ उन्हीं की रेसिपी की बात करेंगे। अरे वाह! थैंक यू मैम। हाँ। सो अब जस्ट वन, आपने काफी सारे अमूल के साथ लाइव शोज वगैरह किए हुए हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली? जी। मेरा जो पहला लाइव था, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं सिर्फ़ किचन में ही कुकिंग करती थी। वहीं से मैं अपनी वीडियो बनाती थी और पोस्ट करती थी। मुझे फ़ेस टू फ़ेस आने में बहुत डर लगता था। बहुत ज़्यादा मैं घबरा जाती थी, और सबसे ज़्यादा मुझे जो टेंशन होती थी कि फ़ेस दिखाना पड़ेगा, पहले मेकअप करो, फिर उसके बाद चीज़ों को अरेंज करो, फिर कैमरा सेट करो। मेरे पास तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी? तो काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं जो उनसे बात होती थी, कह रहे कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ अपना हुनर दिखाना है, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, तुम्हें वो दिखाना है, तुम्हारा मेन जो मकसद है कुकिंग का, तुम्हें वो सब तक पहुँचाना है। तो मैंने कहा कि भी मैं कैसे शुरुआत करूँ? तो सबसे पहले जो मुझे लाइव करने का मौका मिला है, वो मिला है बेकर्स क्लब बाय शेफ मुरली गुप्ता सर के पेज पर। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, वहाँ पर मैंने अपनी महाशिवरात्रि स्पेशल रेसिपी पोस्ट की, जो कि बेर की चटनी थी और फलाहरी पोटैटो फिंगर्स थे।
तो वो सबको बहुत पसंद आई। और जब मैंने वो लाइव किया और उसके बाद मैंने जब कमेंट्स रीड किए, तो इतना अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैम हमें आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और आपकी रेसिपीज बहुत इजी है, आपने जितने भी इंग्रेडिएंट बताए वो हमारे किचन में अवेलेबल हैं और हम अभी इसे बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया। और मेरी एक दोस्त है जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, भावना वासन जी, वो मुझे शुरू से कहती थी कि मुझे तुम्हारी रेसिपीज बहुत पसंद आती है, तुम करो, लाइव करो। मैंने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मेरा वहां पर लाइव देखा, तो तब वो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि अमूल से तुम्हारे लिए कॉल आया है और तुम वहां पर आओ और अपना लाइव करो। मैं थैंक्स करना चाहूंगी भावना वासन जी को, जिन्होंने मुझे अभिषेक सर से बात करा के अमूल के टेस्ट ऑफ इंडिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिलवाई कि मैं वहां आकर लाइव कर सकूं। और अभी जब मैं उसे खोलती हूँ अपने लाइव को और वहां पे मैं व्यू देखती हूँ, 2-3 लाख तक पहुंचे हुए, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है। और सो अब हम आपने इतनी पच्चीस चीजों का और इतनी सारी चीजों का नाम ले लिया, तो हम जानना जी चाहेंगे कि आपकी फेवरेट कौन सी वाली है, और आपके जो ऑडियंस है उनको आपकी कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा पसंद आई है। जी, बिल्कुल। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाबी जो होते हैं वो वैसे खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो मैं किसी एक चीज का तो नाम ले ही नहीं सकती हूँ। और मुझे स्पेशली अमृतसर की सारी चीजें जो जितनी भी ऑथेंटिक है, ट्रेडिशनल रेसिपीज है, वो मुझे बहुत पसंद आती है। खास करके अपने डैडी जी के हाथ की, जब वो बनाते हैं अपना देसी तड़का लगा के, तो मजे आ जाते हैं। और उन्हीं की रेसिपीज को मैं चुराती हूँ और उसे अपने यूट्यूब चैनल तक उनके थ्रू या फिर खुद से पोस्ट करती हूँ। और मैंने देखा है कि मेरी वो रेसिपीज बहुत अच्छी व्यूज आते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करता है। जहां मैं पंजाबी में बोलती हूँ और अपनी पंजाबी रेसिपीज शेयर करती हूँ, वो मेरे दर्शकों को बहुत पसंद आती है। सो आपकी डेफिनेटली हम आपकी सारी रेसिपीज ट्राई करने वाले हैं। आपको भी हम डेमो के लिए बुला रहे हैं, नॉट लाइव, नॉट ऑन द सोशल मीडिया, यू विल बी गिविंग लाइव डेमो इन द चंडीगढ़ ओनली। सो वी ऑल कैन मीट यू इन पंजाब। तो एक चीज जी तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम जिसकी रूरल पंजाब टूरिज्म और नेशनल लेवल पे भी रूरल टूरिज्म काउंसिल ने निवेदिता ट्रस्ट के साथ आहार क्रांति में बाजरा को प्रमोट करने के लिए काफी एक संकल्प लिया है। तो क्योंकि एक पंजाब में बाजरा एक समय नियमित खाने में माना जाता था, लेकिन काफी समय से वो इस हमारे खाने की सूची से अलग हट गया है। आई एम श्योर आपके डैडी जी से अगर आप बात करेंगी, तो आपको वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज़ उन्होंने बताई होगी कि जो बाजरे से बनाई जाती है। तो आज हमें आप उनकी पंडोरा बॉक्स में से कौन-सी रेसिपीज़ है जिसका डेमो देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। मेरा क्या है कि आपने जो बात अभी तक कही है वो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जब मेरी मम्मी डैडी जी से बात होती है, तो हमेशा वो यही कहते हैं बेटा कि हमें मोटे अनाज खाने चाहिए। तो जब मैं अपनी फैमिली से बात करती थी, तो वो यही कहते थे मोटे अनाज खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो तब डैडी जी कहते थे कि नहीं, मोटे अनाज का मतलब ये है कि जो हम चबाते हैं, उसे जितना समय हमें लगता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पंजाब में जैसे आपने बाजरे की बात की, तो दादी नानी के समय पर बाजरा जो है बहुत ज्यादा खाया जाता था। और जब मैं पूछती हूँ डैडी जी से कि अब बाजरा वो इतना क्यों नहीं रहा, या और दलिया हो गया या फिर और अनाज हम खाते हैं मोटे अनाज, अब वो इतने क्यों नहीं है, तो उनका सिर्फ एक यही कहना होता है कि बेटा अब समय नहीं है सबके पास। जो सबसे बड़ा कारण है वो समय है, क्योंकि पहले बड़े परिवार होते थे, बहुत सारे परिवार में लोग होते थे और बांटा होता था सबके बीच में काम। एक अनाज लेके आए तो एक ने उसकी छटाई की, एक ने उसे संभाला। जो बड़े बड़े टीन के ड्रम होते थे, कनस्तर होते थे, उनके अंदर उन्हें रखा जाता था। दी बेटियों को, घर की जो बेटियां होती थी उन्हें दिया जाता था त्योहारों पर। और मैंने खुद अपनी नानी दादी के हाथ से जो बाजरा की रोटी बनती है, उसको पीस कर, कूट कर, उसके अंदर गुड़ और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर उसकी जो पंजीरी वो हमें बना के खिलाते थे, वो स्वाद मुझे अभी भी याद है। और जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, जो भी अनाज हैं, वो मेरे अभी भी पंजाब से ही आते हैं। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ अमृतसर, तो मैं सारे अनाज लेकर आती हूँ, क्योंकि उनका मानना यही कि हमें मोटे अनाज खाने चाहिए। और जब वो मुझे इस तरीके की सलाह देते हैं, मुझे समझाते हैं, सीख देते हैं, तो मैं उनकी सारी जो रेसिपीज हैं, जो वो हमारी वहाँ की ऑथेंटिक है, उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल तक लेके जाती हूँ, ताकि वहां से लोग सीखें और उन चीजों को बनाएं। क्योंकि पहले जो अनाज खाया जाता था, तो डैडी जी यही कहते हैं और हम भी यही सुनते हैं
कि पहले हमें बीमारियों से दूर रहना होता था, इसलिए हम अनाज खाते थे, और अब हम बीमार हैं और हमें ठीक होना है, इसलिए हम अनाज को ढूंढते हैं, जो हमें ऑनलाइन पे भी ढूंढने पर नहीं मिलता। बहुत सही अब बात। हमें 2-3 दिन, 15-15 दिन तक वेट करना पड़ता है कि हमने ये अनाज मंगवाया था, अभी तक नहीं पहुंचा। जब हमें वो चीजें मिलती थी, हमने खुद उन चीजों को खत्म कर लिया, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, हम समय देना ही नहीं चाहते थे उन चीजों को। तो आज तो आप क्या रेसिपी दिखाना चाह रहे हैं अपने इसमें? जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी जो मिलेट रेसिपी है। अब जैसे बैसाखी का समय है, बैसाखी पे बहुत सारे पकवान घर पे बनाए जाते हैं। ख़ास करके जो है आटे का हलवा बनता है, वहाँ पे दलिया बनाया जाता है। उसी में से जब होती है हमारी फसल होती है, और उस टाइम किसानों की जो खुशी होती है, उसका तो हम बता ही नहीं सकते कि वो कितना एंजॉय करते हैं, गिद्दा पाते हैं, नच टप के भंगड़ा पा के रौनका लगा देंदे ने पूरे पंजाब विच। तो तब जो है उस जो अनाज आता है, उसकी खुशी अलग होती है। उसमें से मैंने चुना है जो अपना कोदू मिलेट। कोदू मिलेट जिसे दलिया फिर भी एक बार में किसी को याद रहेगा, बाजरा याद रहेगा, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो बाजरा की खिचड़ी या बाजरे की खिचड़ी के साथ कढ़ी वगैरह ये सब बनते हैं, लेकिन कोदू को तो सबने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो मैं आज कोदू मिलेट लेकर आई हूँ, और उससे मैं गुड़ और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। नमस्कार, मैं सुमंजली मेशीदा ढाबा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बैसाखी का जो त्योहार है वो हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन आप सब जानते ही हैं पंजाब में इस त्योहार का एक अलग ही महत्व है। वहाँ पर इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जब बैसाखी पे राबी की जो फसल है वो लहराती है, उसे देखकर किसानों की जो खुशी है ना, उसका तो हम लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वो कितने खुश होते हैं, और उस खुशी को वो नच टप के, गिद्दा पा के, भंगड़ा पा के, मिठे मिठे जड़े ना खान दियां चीज़ां बना के उन्हें इंजॉय करते ने। तो मैं भी अपने पंजाब चली गई बात करते करते, आपसे क्या करें, वहाँ की खुशी इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बैसाखी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और खुशियों वाला त्योहार है, और आज मैं उसी त्योहार को जो है आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। वहाँ की जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है, यानी कि जो मिलेट से तैयार होती है, उन्हीं में से आज मैं एक रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है कोदो मिलेट, जिसे कि कोदू या पंजाब में इसे कोदरा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे जो है काओ ग्रास भी कहते हैं। ये शुगर फ्री राइस के नाम से भी जाने जाते हैं। हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने आधा कटोरी कोदू लिए थे और उन्हें मैंने 2.5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। पहले इन्हें हमें अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इन्हें हमें साफ़ पानी में ही भिगो के रखना है, क्योंकि यही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। इस पानी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और कलर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा आ गया है, और जो मिलेट है वो भी बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम इसे छान लेंगे। जो कोदू है उसे अलग कर लेंगे छन्नी में, और पानी जो एक पैन में निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ जो हमने कढ़ाई ली है उसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, और उसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच देसी घी। देसी घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और ये घर का निकला हुआ देसी घी है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ली है आयरन कास्ट कढ़ाई। पहले तो मिट्टी के बर्तन चलते थे, सच में उसकी तो क्या खुशबू और क्या स्वाद होता था, बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ें मिलती नहीं। अगर मिलती हैं तो हमें उनकी केयर करनी नहीं आती। हम उसे साफ़ करना, उन्हें रखना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं होता कि हम इन चीज़ों की केयर कर सकें। तो यहाँ पर हमने आयरन कास्ट की कढ़ाई ली है, घी डाल लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बादाम, पिस्ता, और कुछ हम इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, और 2 से 3 इलायची मैं इसमें फोड़ के डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप अखरोट डालें, यहाँ पर आप काजू डालें, किशमिश डालें, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं हम भूनने देते हैं, हल्का सा सुनहरी सा प्यारा सा कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई होने देते हैं। और उधर हमने जो कोदू को छाना है और उसका पानी अलग किया है, उसे भी हम दूसरी तरफ जो है गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी में हम एक अच्छा सा उबाल आने तक उसे गर्म करेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम साथ में ही डालेंगे
लेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। जो गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। गुड़ भी कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ही लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बाकी मीठा आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है जितना आप खाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जो मिलेट्स छान के रखा है उसे हम घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, एक बढ़िया सी खुशबू आने तक और एक अच्छा सा कलर आने तक। तो यहाँ पर इसे हम हल्के हाथ से चला लेते हैं। तो हमारा जो गुड़ का पानी है, हमारी गुड़ की जो चाशनी है वो तैयार है और इसे हम छान कर ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई गुड़ में अगर कोई तिनका या कुछ होगा तो वो छन्नी में ही रह जाएगा। तो सारा पानी हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसे हम चलाएंगे। गुड़ का पानी जो है ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको गुड़ का पानी आपके पास बच जाता है तो उसे आप आटे में भी गूंद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लो जी, अब आती है असली जो है रेसिपी बनाने का तरीका, तो वो है हमें इसे ढककर पकाना। खाने को जब हम ढककर पकाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। एक जो खुशबू आती है और खाना जल्दी पक के तैयार होता है, हमारा समय बचता है। तो इसे हम ढक कर के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर हम 10 मिनट बाद चेक करते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर किसी चीज़ की कसर होगी तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मिलेट हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। अभी आप देखेंगे इसमें हल्का हल्का वाइट सा आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कोदू अभी कच्चा है। अभी हमें इसे और पकाना है। मैं आपको इसको पास से एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, जब इस तरीके का दाना इसमें आपको नज़र आए तो इसका मतलब इसे और पकाने की ज़रूरत है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको फिर से कवर कर दिया था बिल्कुल सिम सेक पर, और अब आप देखिए कि अब इसका कलर कैसा आया है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है बनके तैयार है। जो मिलेट है वो बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, खाने लायक हैं। आप हल्का से एक दाना हाथ में दबाकर देख सकते हैं। इस स्टेज तक आप इसे अच्छे से उबाल लें और अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप गुड़ की क्वांटिटी उतनी ही रखें, ज़्यादा ना करें। तो ये हमारा कोदू मिलेट जो है बनके तैयार है। तो लीजिए, हमारी मीठी सी कोदू मिलेट रेसिपी तैयार है। हमें तो मीठा खाना है और इस त्योहार को खूबसूरत बनाना है, खुशियों भरा बनाना है। मीठा खाएं, खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो ये हमारी मिलेट रेसिपी जो है कोदू की, हमने यहाँ पर जो आज मीठी रेसिपी तैयार की है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई करें। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत गर्म है और बच्चों को देंगे खाने के लिए तो वो बहुत खुश होंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सुमंजलि जी, आपकी ये डिश देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमें ना बस अभी खा लेते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। सो आई थिंक वी विश everyone very happy Baisakhi and we request them to everyone to join and enjoy this our freshness of the अभी तो हमारी ताजा जो फसल कटी है उसका वो लोग अच्छी तरह से एंजॉय करें। सो मैं आपको जस्ट जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं तो आपकी जैसे बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ जनरली एक उनका हुनर होता है खाना, ठीक है, और दे आर नॉट एबल टू अर्न एनीथिंग। सो हमारी एक 92 इयर्स ओल्ड लेडी है यहाँ पे चंडीगढ़। देयर शी इज फ्रॉम द वेरी वेल टू डू फैमिली एंड एट द एज ऑफ 92 शी टोल्ड हर डॉटर कि पूरी जिंदगी मैंने बहुत काम किया, सब कुछ किया, पर मैंने अपनी तरफ से एक पैसा भी नहीं कमाया। उन्हें इस बात का बड़ा दुःख था कि वो मतलब दुनिया में उन्होंने सब कुछ चीज़ करी, उनकी सारी ख़्वाहिश पूरी हुई है, लेकिन शी सेज़ कि मैंने कभी भी एक पैसा नहीं कमाया। क्योंकि एक अपने इंडिपेंडेंट और अर्निंग मनी और बिकमिंग आत्मनिर्भर जो होना एक होता है, प्राउड फ़ील होना होता है, वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने अपनी वो बेसन की बर्फ़ी बनाई है, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर लिए हैं पंजाब की जो बहुत ही एक उनके हाथ के दादा-नानी जैसे आपके पेरेंट्स फादर का आपको पसंद है, वैसे ही वो एज़ ए ग्रैंड मदर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को उनकी वो फेवरेट थी, तो वही उन्होंने बनाई।
सो इसका उन्हें जो हुनर था उन्होंने एक नाम दिया उसको। सो हम जानना जी चाहेंगे कि अगर इसी तरह की बहुत सारी महिला है तो उनको आपका जी क्या मैसेज रहेगा जो यंग जनरेशन आ रही है, सो वो जी कैसे ट्रेडिशनल चीजों को अपनी जिंदगी में लेके और उसको एज ए कैरियर आगे बढ़ाए? जी बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर वो गृहिणी जो अपनी किचन में, अपने रसोई घर में काम करती है, वो हर एक गृहिणी शेफ है। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे सपने हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो अपने घर के अंदर रह के भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोशिश को अपनी जो है जारी रखना चाहिए। और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो मेरे को पता भी नहीं था कि यूट्यूब जो चैनल है, उससे हमें जो है पेमेंट भी मिलती है, हमें पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे पैसे, मुझे ये था कि मुझे अब जो डैडी जी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ढाबा नहीं खोल पा रहे हैं, कुकिंग को तो वो छोड़ ही नहीं सकते। वो हमारी किचन में उनका जो पतीला और कड़छी, तो वो कहते हैं ना, चिट्टा कुर्ता पजामा पाया, सिर ते बन्निया पटका ते पाया, परना ला के मुच्छा नु वटते, पहलवान जी चले ने ढाबे थे। तो वो उनका शुरू से वही रहा। और जब मैंने उनको वो शेफ कोट पहनाया, तो उनकी खुशी ही कुछ अलग थी कि मेरी बेटी ने मेरे लिए कुछ किया है। और तब उन्होंने मेरे को शाबाश मेरा पुत्र, ये जो उन्होंने शाबाशी दी ना मेरे लिए, वो बहुत कीमती था। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो करना चाहती थी लाइफ में, अब मैं बढ़ चुकी हूँ उसकी तरफ। बहुत हिम्मत मिली थी। तो मैं हर गृहिणी को वही कहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपका कोई मोटिव है या आपका कोई हुनर है, तो उसे आप निकालें, सब तक पहुंचाएं, अपने घर से शुरुआत करें। छोटी सी अगर आपके पास चीज है, आप उसी से शुरुआत करें। हमें ज्यादा महंगे फोन की या इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो रास्ते हमें अपने आप धीरे धीरे मिलते जाते हैं। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी उंगली थामी, और मुझे टेस्ट ऑफ पंजाब में रूबरू होने का मौका मिला। और इस तरीके से ही जो गृहिणियां हैं और खुद को आगे पहुंचाना चाहती हैं, वो धीरे धीरे कोशिश करें। आप जैसे बहुत से हम लोगों को सपोर्ट करने वाले जो गुरु हैं बैठे हैं, वो हमें आगे लेकर जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज को मैं मानती हूँ, वो है हमारे माता पिता का आशीर्वाद। वो है तो हम सफल हैं। आपने बहुत अच्छी बात करी है। हमारे जो शेफ नेलूफरा मैम है, वो एक जी 27 अप्रैल को एक मलिकाए रसोई क्वीन लुधियाना में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लक्ष्मी लेडीज जी क्लब में। तो जिसमें कि हम जी अपनी घर से ही महिलाओं को एक डिश बना के लेके जानी चाहिए पड़ेगी। और वहीं जी पे उनके काफी सारी पूरी जज की टीम है, जो कि शेफ्स हैं, वे उनके उसको करेंगे। तो एक बहुत अच्छा मौका है कि बहुत सारी जी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप उनके लिए एक आइकन हैं कि जो इस चीज के लिए कि आगे चल के उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर खुल जाएगा। प्रिया, आई जस्ट वांट, जी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर सुमंजलि, शेफ सुमंजलि, प्लीज यू मे आस्क। शेफ मेरी तरफ से एक यही क्वेश्चन है कि आपका क्या सजेशन होगा कि हम मिलेट्स को ज्यादा फेवरेबल बनाए। मतलब ऑफ कोर्स अभी भी लोग आटा ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, या एट द मोस्ट सोया का आटा प्रेफर करते हैं। मिलेट्स बैक स्टेज तो वही गया, बट आपका एक ऐसा कौन सा मतलब सजेशन होगा जिससे कि हम उसे एक मोर पॉपुलर बना कमोडिटी बना सकते सकते हैं? हैं। जी बिल्कुल। जो अनाज है वो तो हमें ऐसे ही खाने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम समय, जो हमारा टाइम है, वो अब हमारे पास इतना नहीं रह गया है। सब जो है, पहले पूरा परिवार होता था, अब हस्बैंड जी वाइफ है, बच्चे हैं और वर्किंग है, सब काम है जरूरी। तो सब इंस्टेंट पर आ गए हैं कि हमें आटा पिसा पसाया मिल जाए, और कुछ उसमें ऐसा हो फॉर्मेट कि हम उसे घोले, फटाफट से चीला बनाएं और वो हमारे लिए हेल्दी हो गया, खाएं और हम चले जाएं। मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे घर में चावल, दलिया, बाजरा और इस तरीके के जितने भी मोटे अनाज है, सब अमृतसर से आते हैं और हम उनको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत मोटा चावल है, पॉलिश फ्री चावल है जो मेरे घर में बनता है। कोई टेस्ट नहीं है उसका, कोई स्वाद नहीं, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि खाने पीने को लेकर अगर आप अच्छे हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको मोटे अनाजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
और खुद भी करें, अपने परिवार को आगे भी जो लोग हैं उन्हें भी यही सलाह दें कि आप मोटा अनाज ही खाएं, थोड़ा समय निकालें, अपनी हेल्थ के लिए समय निकालें। बहुत अच्छी बात। Thank you so much, ma'am. जी, थैंक यू सो मच मैम। वेरी नाइस सुमंजलि, आई थिंक आपने जो मिलेट के लिए बोला है, सो आप हमारी बस आपसे यही कोशिश है कि उस मोटे अनाज को इतना सिंप्लीफाइड कर दीजिए कि शायद हम हर गृहिणी उसको यूज करने में घबराए नहीं और वो अपने बच्चे उसको कुछ रेसिपीज ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों को भी पसंद आए, क्योंकि जो अगर बच्चे जी। खाने लग जाते हैं तो एक घर में मदर को बहुत बड़ा वो है ना, वो मिल जाता है कि हाँ मिल जाती है, हाँ, कि भाई मेरे बच्चों को बच्चे कितना खा रहे हैं, खिला तो मुझे सकते हैं। अलग-अलग खाना नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही खाने में सब जने हो जाएंगे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी एक कॉन्टेस्ट था जहाँ पर हमें हेल्दी रेसिपी बनानी थी मोटे अनाज का इस्तेमाल करके, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि हम तो ये चीज नहीं खाएंगे। तब मैंने भी यही किया, मैंने बाजरा लिया, बाजरा मोटा सिंपल बाजरा लिया, मैंने उसका आटा नहीं लिया बल्कि उसको पीस के मैंने अपनी आंखों के सामने मिक्सी में उसका आटा तैयार किया। मुझे पता है कि ये ओरिजिनल है मेरे सामने, उसका आटा तैयार किया। और जो बच्चों का आजकल फेवरेट है टाकोस, उसकी हमें मार्केट से शेल मिलती हैं जो कि उसमें होती है, मैदा में होती हैं। तो मैंने वो टाकोस की शेल जो बाजरा के आटे से बनाई और उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स की स्टफिंग करके, बीटरूट और उसके ऊपर खूब सारा पनीर लगाकर मैंने बच्चों को वो खिलाया। उन्होंने खूब इंजॉय किया और वो अनाज जो है वो भी बच्चों तक पहुंचा। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारी रेसिपीज ऐसे लेके जी। आएंगे जो बच्चों को पसंद आए और उनके साथ उनकी मदर्स खुश रहे और ऑब्वियसली बाकी लोग तो फिर एंजॉय करेंगे ही। जी जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, तो यार वी कैन जस्ट से Thank you. And thank you so much, Chef Sumanjali, कि आपने Thank अपनी you. लाइफ में से इतनी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग इंस्टेंसेस हमारे सामने रखे और हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि जब हम अपनी रूट से कनेक्टेड रहेंगे और ऑथेंटिक चीजों को सामने लेके आएंगे विद ऑफ कोर्स बेस्ट विशेस ऑफ आवर पेरेंट्स, तो वो चीज हमेशा ही सक्सेसफुल होगी क्योंकि उसमें इतना प्यार भरा हुआ होता है। And thank you also, ma'am, for your contribution to Ahar Kranti mission, जिसमें हम ये और मिलेट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू दी निवेदिता ट्रस्ट एंड ऑफ कोर्स द रूरल टूरिज्म काउंसिल आल्सो। With that, ma'am, once again, thank you so much for sharing your journey and also motivating all the daughters to fulfill the dreams of their parents. Now, we also request our audience and all the guests to continue to watch our series, motivating and surprising us. Be the inspiration for someone. See you all tomorrow to meet Chef Neelu Kora, who's the founder of Chef Kala and is working rigorously to empower and inspire homemakers to become professional chefs. Thank you, Chef Sumanjali. Thank you, Rajshri ma'am, for you so much, organizing the Rubru series and picking up such eminent chefs who are an inspiration and who've seen so much in their life and are setting such good examples for all the daughters and all the chefs, prospering, budding chefs of India at least. Thank you so much, Priya, and thank you so much. And please convey our regards to your father from our council. Definitely, we are going to have a separate session with him also, and one session from you how to do the YouTube channel, so that we will be coming for the separate series with you. Thank you so much. Sure, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am.